ओके चलो स्टार्ट कर रहे हैं. सो last week we were learning this thing, right? Windows function, right? And I told like aggregate, Windows function. There are three kind of Windows function. Windows. I was telling Windows every time, right? अब मेरे को ना विंडोज ही आ रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों, बट इट्स कॉल्ड विंडो फंक्शन. ओके, सो विंडो फंक्शन आल्सो नेम्ड एज एनालिटिक फंक्शन. ठीक है, उस टाइम बोलना भूल गया था मैं. इट आल्सो known as analytic functions because it involves some analytics like analysis, right? So there are three main types of SQL like Windows function, which are aggregate Windows function, ranking and value Windows function. ठीक है, तो value ranking means we are ranking like how, what is the rank, sequential rank. Rank means what do you mean by rank? Position. Right, position. So where the position, good. So the different way of like using the rank function, that different way to get different kind of ranking based on different different ranking Windows function. So row number is giving you sequential numbers, rank was giving you like sequential. So what I did here, I need employee name. There's a table called Windows function 2 where I have captured employee name, date, and some other data which is not none of our business now. We are just going through the row numbers, rank and rank dance rank based on this order by work ID. Okay, so if you see, if I take like order by means I'm not using partition means what I told you, right? If we are not writing here partition by, that means entire table act as a one partition. So out of entire table it is looking for row number. So row number is coming sequential wise 3 4 5 6 7 8 9. But rank, how it will come? Because there's a duplicacy. If you see, I just order by work date, right? Duplicacy. So it took 1 1 1. That means 1 2 3. It skipped 2 and 3 and then give the sequential number like 4. But it skipped the in between number 2 3. Okay, rank actually do this. So 4 4 4, then it came 4 5 6 7, it again comes 7, then 7 7 7 because these are duplicacy. But dance rank, what it does, it gives you 1 1 1 only, but the next sequence number it comes again like in the next date. Okay, ये तो clear है ना ये? This is clear, right? Yes, yes. चंदू नाना, this is clear, right? ये clear है ना उस Yes. दिन के वीडियो से? Yes. ओके ओके, ठीक है. तो आज हम लोग चलते हैं एक बार थोड़ा सा दो तीन टाइप का डिफरेंट चीजें भी देखेंगे आज. ठीक है, अब जाते हैं वैल्यू में. Percentage I'll tell you later. Percentage is not that much required. Although I'll tell you later. But this you know already. Row number, rank, and dance rank, and entile also we covered. So we'll go to lag, lead, first value, last value, and I'll check later. We'll go first this four. Okay. So first value. So what does first value means? The name only suggests, right? The name itself suggests something. I don't know if I have written something or not. I just kept one link here of first value. So first value is nothing but what? See, complete time. So I'll show you the table first. Okay. Select star from this. See, this is the table. We have employee, 3 employees, Neil, then Hari, and Ritu. And all those employees have 3 individual dates, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and their work received for that particular day and completed number of work and completion time. Okay. So if I just write first value, the first value also the similar way, what I told, over partition by इसमें order name. फंक्शन Okay. ऐसे ही लिखते हैं क्या? Hmm? विंडोज फंक्शन ऐसे ही हाँ, लिखते हैं विंडोज क्या? फंक्शन ऐसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स ही ऐसा है. फंक्शन 2 ऐसा है क्या? नो, इट्स अ फ्रॉम. टेबल. इट्स अच्छा. जस्ट अ टेबल. मैंने दिया नाम टेबल का, ये टेबल है ना. ओके. हम्म. ओके, सो you remember like the earlier table we have given function 1,
नॉट फंक्शन 1, विंडोज एग्जाम्पल, राइट। इस टेबल का नाम दिया था मैंने विंडोज फंक्शन, ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा बाद। Yes, got it. Got it, right? So I'll change that to Windows function table. So Windows function 2 is nothing but a table, okay, which includes this data. Okay, so we'll go through the first value now. So if you see first value, I have given star also so that you get all the data plus this particular column, first completed time. Okay, let me remove the partition for now. Okay, let me show you how it will look like. 120 आ रहा है सबका, that means what? Got my point? I'll show you. So first value means the first value in the table, because we did not mention here partition, that means entire table is our partition. So in that entire partition, what is my first value in completed time? First value in completed time, what is my first value? 120, right? है कि नहीं? Yes. तो वो बोल रहा है ऑर्डर बाय का, इसीलिए ऑर्डर बाय दे रहा हूं क्योंकि ये मैंडेटरी है, अदरवाइज ये भी नहीं देता मैं। ये बिना देखे देखो, it will ask you order by is mandatory. So order by is nothing, it's not doing nothing, it's just ordering the dates. Okay, ताकि एक 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 का है, जैसे देखो नील हरी ऋतु, ये पूरा ऑर्डर कर रहा है। अब ऐसे पहले नील का एक साथ था, ऋतु का एक साथ था, हरी का एक साथ था, अभी डेट के हिसाब से आ गया, एक एक तारीख का जितना भी था वो आ गया पहले, 2 तारीख का। सो इट इज ऑर्डरिंग, जस्ट ऑर्डर। ऑर्डर बाय तो पता है ना, याद है, right? So Yes. first it is doing, bringing the first value from the completed time and then it is ordering by the date. तो first value मेरा क्या था, इसमें जाओ टेबल में, first value क्या था, 120 था, completed time, ठीक है। अगर मैं इसको completed time नहीं लिख के work completed लिखूं तो मेरा क्या आएगा बताओ, तब मेरा क्या आएगा? 22. हाँ, for every row it will come 22. See, so it is doing nothing. It is just giving every row the first value of the column which I am referring to. तो जो भी कॉलम इधर रेफर कर रहा हूं ना फर्स्ट वैल्यू, उसका फर्स्ट वैल्यू मेरे सब में दे रहा है। अंडरस्टूड? अगर वर्क रिसीव लिखूं, सपोज इसमें मैं जाता हूं टेबल में, ठीक है, वर्क रिसीव को अगर मैं लिखूं क्या आएगा बताओ, हर रोज पे 110. 110. सो यू गॉट इट नाउ। सपोज मैं देखता हूँ, डेट लिख के देखता हूँ, डेट से काम हो रहा है कि नहीं देखता हूँ, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो डेट के लिए क्या आएगा, अगर आता है तो सबसे फर्स्ट कौन सा था वो आएगा, फर्स्ट था 18 तो 18 आ गया। समझ में आ गया? प्रिटी इजी, राइट? Yes. ठीक है, ये मैं लिखा कंप्लीटेड टाइम तो मेरे को 120 दे रहा है, बिकॉज आई डिड नॉट मेंशन पार्टीशन, एंड पूरा पहला का जो है 120 सब में दे रहा है। अगर मैं इसमें पार्टीशन मेंशन करता हूं देन व्हाट विल हैपन, सपोज पार्टीशन बाय ई नेम, ठीक है, ई नेम था, ओके सॉरी, हाँ। नाउ टेल मी क्या हो रहा है इससे, पार्टीशन क्या हो रहा है पता है, पार्टीशन मतलब ये ई नेम को अभी पार्टीशन कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एनोटेशन कहा गया, इसमें कुछ था ना हम लोग आया। सो नील का एक पार्टीशन बना दे रहा है, हरी का एक पार्टीशन बना दे रहा है, ओके, एंड ऋतु के एक पार्टीशन बना दे रहा है। सो अभी जो कैलकुलेशन होगा ये पार्टीशन बनाने का बाद, जो भी कैलकुलेशन होगा फर्स्ट वैल्यू, ये होगा इन पार्टीशन के ऊपर, नॉट इन एंटायर टेबल, ठीक है। जब भी पार्टीशन बाय लिखते हो, पार्टीशन बाय पहले होता है, ठीक है, पार्टीशन पहले कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद ये कंप्यूट होगा कि मुझे अभी फर्स्ट वैल्यू दो बेस्ड ऑन वो पार्टीशन से। तो क्या है मेरा फर्स्ट वैल्यू बेस्ड ऑन पार्टीशन, कंप्लीटेड टाइम, अभी इस पार्टीशन का कंप्लीटेड टाइम कौन सा है, फर्स्ट वैल्यू 120, तो सब में 120 120. आएगा। ये पहला 3 रो के लिए जो नील है, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय नेम दिया तो नील के लिए सारा 120 आएगा। हरी जो सेकंड पार्टीशन है, ई नेम है ना, इसीलिए हरी दूसरा पार्टीशन हो गया, तो इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है 100, तो इसका सारे 100 आएगा। 100. इसका क्या है फर्स्ट वैल्यू ऋतु का 90, 90. तो इसका सारा 90 90. आएगा। तो पार्टीशन का ये है फंडा, ठीक है। तो मैं अगर अभी रन करूं इसको, देखना अभी तक रन नहीं किया, देखो हरी का था 100 क्योंकि हरी ऊपर चला गया, ठीक है, वो भूल जाओ क्योंकि ये ऐसा ही था, हरी ऊपर चला गया। अभी देखो मैं जो पार्टीशन किया था
नील फर्स्ट था ना, राइट? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, Yes. इसको डिसेंडिंग कर देता हूँ, तब और अच्छे से समझ में आएगा। ऑर्डर बाय ई नेम, डिसेंडिंग और असेंडिंग कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तब इजीली तुम लोग को इसमें लिख दूंगा, मैं समझ में आएगा। ठीक है, इसका क्या 100 होना चाहिए, राइट? अब मैं इसमें लिखता हूँ 100, आ गया। ये एक्चुअली 100 होना चाहिए, ठीक है? ये 100 है, और इसमें आ गया 120, ठीक है? इसमें आएगा 120, ठीक है? इसमें आएगा 90। अब रन करता हूँ ताकि यू गाइस डू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन, क्योंकि हरी ऊपर आया, नील और ऋतु, ठीक है? सीक्वेंस ऐसा है, हरी नील ऋतु। देखो 100 का 100 आ गया पूरा तीनों लाइन पे, 120 वाले में 120 आएगा तीनों लाइन पे, 90 वाले में सारे 90 आ गया। समझ गए? Yes. अंडरस्टूड? तो पार्टीशन बाय क्या कर रहा है, एक ग्रुप को पार्टीशन कर रहा है। जैसे पार्टीशन बाय अगर मैं वर्क डेट लिखूं, ठीक है, तो देखते हैं वर्क डेट में पार्टीशन क्या होगा, ये 1 1 को एक ले लेगा, तब मतलब ऑर्डर बाय ये करके देखो, इसको एक ग्रुप बना लेगा, 120 आएगा नहीं इसके, 1 1 के लिए, 2 के लिए आएगा 75, 3 के लिए आएगा 70। देखना 120 75 70, 120 75 70, क्योंकि मैंने इस बार पार्टीशन किससे किया, डेट से, वर्क डेट से। तो वर्क डेट का कौन सा पहले था, 120, सो 120 आ गया। 2 का कौन सा पहले था, 75 75 आ गया। 3 का कौन सा, ये कौन सा सिनेरियो में यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो हम लोग कोशिश करेंगे बाद में जानने के लिए। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो क्या हो रहा है, ठीक है? मे भी तुमको ये बोले कि मुझे जो पहला इन्वेंट्री है, ये एम्प्लॉय वाइज एक एग्जाम, एक चीज बोलता हूँ कैसा एक आ सकता है। जैसे सारे एम्प्लॉय का देखो, वो लोग मंडे को कितना काम करता है या तो सैटरडे को कितना काम करता है, कंपैरिजन। एक थ्रेशोल्ड ले लिया कि हाँ, वीक में मान लो, वीक में फर्स्ट फर्स्ट डे में वो लोग ज्यादा काम करके बाद में कम काम करते हैं क्या, कंपैरिजन के लिए मान लो तुमको ऐसे दिखा दिया, तो इट इज वेरी इजीली अंडरस्टेबल ना कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाओ 100 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, जैसे फर्स्ट वैल्यू मैंने निकाल लिया, राइट? तो इसको मैं कंप्यूट कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर आइटम को दूसरा कुछ निकालने के लिए, जैसे मैं सब क्वेरी यूज किया था ना, राइट? अभी मैं तुमको सब क्वेरी का हिसाब से इसको बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मैंने सब क्वेरी में एक टेबल में ले लिया, फ्रॉम में ले लिया। ओके, सब क्वेरी जब टेबल एज ए टेबल लेते हो ना, ये एज ए टेबल ले लिया ना, इसमें कुछ भी एलियास दे दो, कुछ भी दे दो, नाम कुछ भी, एक्स ए बी सी कुछ भी। तो देखो जो चीज अंदर था मेरा वही आ गया ना बाहर। क्यों आया? क्योंकि ये मैंने देखो सब क्वेरी का फंडा क्या था, यू आर रनिंग द इनर क्वेरी फर्स्ट, उसको ले जाके आउटर क्वेरी में डाल रहे हो, राइट? तो जो भी इनर क्वेरी में आ रहा है तुम्हारा, वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इससे ले रहे हो इनर क्वेरी से, तो जितना जो था वही ले लेगा स्टार, उसमें कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे हो तुम। अभी मैं बोल रहा हूँ तुम कंडीशन लगाओ, ठीक है? स्टार के बाद तुम और एक चीज लिख दो कि मुझे, तुमको जो बोला था ना मैं, कंपैरिजन चाहिए फर्स्ट डे में वो जो काम कर रहा है बाकी रिमेनिंग डे में उससे कितना कम या ज्यादा कर रहा है। आई नीड टू नो दैट, ओके? सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to do the aggregation like all those uh, जैसे you need to do this, then uh, minus completed time। तो इससे तुमको पता लग जाएगा कि मेरा डिफरेंस क्या है डेली बेसिस में, ओके? जब ये डाल दोगे तो देखो ये कंप्लीट हुआ था 100 में, फर्स्ट डे को 0 0 आएगा, फर्स्ट डे को ऑलवेज, राइट? क्योंकि फर्स्ट डे का तो फर्स्ट डे ही है, राइट? उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड डे तुम्हारा 40 मिनट ज्यादा लगा, कम 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 लगा, राइट? कम किया, इट इसमें 20 मिनट्स कम किया। तो इसमें कुछ पता लग रहा है ना, जैसे इसमें 10 तुमने 90 मिनट्स ज्यादा किया इस दिन को, ये कंप्लीटेड टाइम है ना उस दिन का, और ये हो गया फर्स्ट डे का। तो फर्स्ट डे के हिसाब से मैंने बाकी दिन में कैसा परफॉर्मेंस किया, जस्ट टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑन द डेली बेसिस बेस्ड ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, लाइक फर्स्ट डे को मैं वीक के डेट के बेसिस में भी कर सकता हूँ, ई नेम के बेसिस में पार्टीशन कर सकता हूँ, जैसे भी हिसाब से मुझे पार्टीशन करना है। तो मतलब हरि ने
फर्स्ट डे में जितना किया था, सेकेंड डे में 40 उसने कम किया, थर्ड डे में 80 उसने कम किया। अगर तुमको माइनस में दिखाना है कम किया को, तो उल्टा लिख दो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ माइनस मतलब उसने कम किया। सी, तो his productivity, his completion time, his completion time is taking less compared to the first day. First day he took more time, second day he took 40 less time, although less completion item, but I'm just showing you an example ki what kind of scenario you can face, or what kind of things you can do with the help of this first value. You can do all the calculation. Okay, और मैं सब क्वेरी में क्यों लेके जा रहा हूँ, इसमें भी लिख सकता था, लेकिन इसमें लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता, ये पूरा अमाउंट, उसके बाद ये कंप्लीटेड टाइम को माइनस ये पूरा फर्स्ट वैल्यू को उससे माइनस करना पड़ता। ठीक है, बहुत लंबा लंबा कुछ अजीबोगरीब हो जाता है ना, राइट। इसे अगर इसको भी रन करता हूं मैं, तो इसमें भी वही आएगा, देखना 0 40 40 20, देखो सेम ही आया। लेकिन इजी वे है कि मैंने इसमें जो जो भी विंडोज फंक्शन लगाया उसको सब क्वेरी में लिखो, ताकि मेरा विंडोज फंक्शन वाला कॉलम भी मुझे मतलब वन स्टेप बाय स्टेप, राइट, इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी, विंडोज फंक्शन से मेरा ये आया, नाउ आई एम गोइंग टू सब क्वेरी टू गेट माय this calculation done, and I got the calculation also, and this column as difference of time compared to फर्स्ट डे। ठीक है, तो इसको सबको मैं एक साथ लगा देता हूँ यार, लंबा नाम दिया ताकि यू गैस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअली कर रहे हैं ये। कुछ समझ में आया अभी तक? डिफरेंस ऑफ टाइम कंपेयर टू फर्स्ट डे। ओके, यू गाइस अंडरस्टूड सब क्वेरी कॉन्सेप्ट कैसे किया, सब क्वेरी, या भूल गए थे इसको? Yes, मतलब got फ्रॉम it. टेबल मीन्स क्या, टेबल इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो इसमें भी जब मैं ये लिख रहा हूं, तो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इसको मैंने कन्वर्ट किया एज एक्स टेबल, एलियस लिख दिया, और फ्रॉम के बाद मैंने ब्रैकेट शुरू करके ये लिख दिया। अगर मैं एलियस नहीं दूंगा तो ये नहीं लेगा, क्योंकि उसको एज एलियस देना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी दे दो, ए दे दो। ठीक है, तो मतलब ये सिलेक्ट जो आउटर क्वेरी है, इस इनर क्वेरी को एज ए टेबल ट्रीट कर रहा है। दे आर ट्रीटिंग इट एज ए टेबल ए एंड टेकिंग इट, एंड मैं इधर फ्रॉम ए भी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि फ्रॉम ए से क्या ही आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, ए तो कुछ एक नंबर है, अल्फाबेट है, क्या आएगा, राइट। तो इसीलिए मुझे पूरा सब क्वेरी जो इनर क्वेरी है उसको भी लेना पड़ेगा एक साथ। समझ में आ गया? एनी डाउट बताओ, कुछ भी डाउट है तो पूछो। सो कहाँ कहाँ और इम्प्लीमेंट होता है ये, फर्स्ट विल गो थ्रू, बट मैंने तो अब तक फर्स्ट वैल्यू इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट हाँ सिनेरियो आ सकता है, यू मस्ट नो दिस थिंग्स, बिकॉज सिनेरियोस कभी भी आ सकता है। सी, आउट ऑफ दिस थिंग्स, राइट, you will every day you will face these things. Aggregate functions are very common, like average, maximum, minimum, sum, count. These are the base of analysis, right? हम लोग एनालिसिस करते ही इससे ना। घर का जो खाता तुम देखते हो मंथली, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, सब में तो यही सब होता है ना, कितना मैक्स था, कितना ज्यादा गया, कितना मिनिमम गया, राइट, कितना सम हुआ, कितने क्वांटिटी लाए, एंड दीज आर ऑल्सो मोस्टली वास्टली यूज्ड। डेंस रैंक, रो नंबर, ये तीनों भी बहुत बहुत वास्टली यूज होता है, क्योंकि इस तीनों से हम लोग को जो फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग वो था ना, वो सब भी मिलता है, और बहुत कुछ इसमें से होता है। विल गो थ्रू टू एग्जांपल। और इधर से लीड एंड लैग, कुछ कुछ सिनेरियोस में तुमको मिलेगा लीड लैग्स, कुछ कुछ रिक्वायरमेंट आएंगे जिसमें लीड लैग का मोस्टली काम होता है। ये मैंने अब तक देखा नहीं, मतलब इतना मेरे पास शायद ऐसा रिक्वायरमेंट आया नहीं, बट so I am going through so that you guys know the concept क्या होता है फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट वैल्यू? कोई Yes. प्रॉब्लम, दिक्कत? सो Bit डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट, complicated, looking complicated. क्यों कॉम्प्लिकेट लिख रहा है बताओ?
ठीक है, तुम सब क्वेरी भूल जाओ, मैं सब क्वेरी को ऐसे ऐड ऑन कर दिया ताकि तुम लोग को थोड़ा समझाऊं। एटलीस्ट ये समझ में आया कि नहीं, ये हम्म। फर्स्ट वैल्यू समझ में आया कि नहीं, हाउ फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग थ्रू। यस। See, so first value is nothing but just bring the first value based on the partition and order you have given here. Okay, और फर्स्ट वैल्यू में भी ऑर्डर बाय मैंडेटरी है, जैसे हम लोग का रैंक में था। इसमें पार्टीशन बोले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टीशन इज नथिंग बट हाउ वी आर डिवाइडिंग दिस टेबल, ओके, इनटू पीसेस। और ये जो सब क्वेरी लिखा मैं, सब क्वेरी क्यों लिखा, ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि जब हम लोग विंडोज फंक्शन लिखते हैं ना, तो सब क्वेरी सीटीई ये सब लिख के ना हम लोग उसको, उसके कॉलम को, व्हाई आई हैव रिटन सब क्वेरी जस्ट सो दैट आई कैन यूज द एलियस नेम, दिस नेम, सिंपली आई कैन यूज दिस नेम rather than using this entire thing। तो अगर मुझे इसमें लिखना होता, सब क्वेरी में नहीं लिखता, तो क्या होता पता है, जो एस से पहले तक यहाँ तक कॉमा डाल दो, इधर नया कॉलम बनाएंगे, ये लिखता मैं, और ये लिखता कंप्लीटेड टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। जो ये फर्स्ट कंप्लीट टाइम लिखा ना इसमें, ये फर्स्ट कंप्लीटेड टाइम क्या है, ये है, ये मतलब क्या है, ये है राइट। तो इसको पूरा लिखना पड़ता है इधर, एक ब्रैकेट में लिख दो सबको पूरा एकदम ऐसे, और फिर कंप्लीटेड टाइम से माइनस कर दो, और इधर दे दो एज, कुछ भी नाम दो, रो कुछ भी आर दे दो, आर कॉलम में क्रिएट हो जाएगा, देखना बिना सब क्वेरी का तुम्हारा ये दिखा देगा चीजें। देखो आर कॉलम एक आ गया, मतलब ये कॉलम का नाम डाल दो। तो यही चीज तुमको सब क्वेरी के बिना भी देगा। बट इसमें समझने में, मैं तब तुम जब भी इन फ्यूचर आओगे समझने में थोड़ा सा तकलीफ होता है कि ठीक है मैंने ये निकाला फिर, और ये इतना सारा बड़ा क्या है। तो उससे सिंपल तरीका है, इसको सब क्वेरी में कन्वर्ट कर लो, सिंपल है ना। जस्ट कन्वर्ट इट टू सब क्वेरी, इसको एक ब्रैकेट डाल दो ऊपर, ठीक है, एक नीचे ब्रैकेट डाल दो, सब क्वेरी का वही था ना, सब क्वेरी कम्स विद पैरेंथेसिस राइट। ब्रैकेट डाल दो ऊपर नीचे, इसको एक नाम दे दो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, और ये कॉमा हटा दो पहले, ए दे दिया जो भी दे दिया। उसके बाद इधर जाके तुम सिंपली जो इनर क्वेरी था उसका जो एलियस नाम है राइट, अंडरस्टूड, उसका जो एलियस है फर्स्ट कंप्लीटेड टाइम, वो एलियस को यू कैन यूज, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एलियस नेम। तुम स्टार के जगह अगर ये ले लोगे ना, तुम्हारा देखना इस नाम का जो भी था वो दे लेके आ जाएगा, ये भी जो भी वैल्यूज था, ये तुम्हारा डिराइव कॉलम है राइट। फर्स्ट कंप्लीटेड टाइम बोल के कुछ तो कॉलम तुम्हारे टेबल में था ही नहीं, इनिशियल टेबल में था क्या कुछ भी, फर्स्ट कंप्लीटेड टाइम बोल के कुछ था क्या, नहीं था ना। वी हैव डिराइव्ड इट राइट बेस्ड ऑन हम्म। फर्स्ट वैल्यू विंडोज फंक्शन। सो तुमको ये वाले कॉलम एक बना लिया, एक टेबल ही बना लिया इसमें, और इस टेबल को तुम इधर यूज जब करोगे ना, डायरेक्टली यू कैन यूज द एलियस नेम। सो इसीलिए हम लोग सब क्वेरी या सीटी, ये ऐसे जैसे सीटी भी जाऊंगा बाद में, तो वो सबको यूज करते हैं ताकि द क्वेरी लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन। सो नाउ इफ यू सी दिस क्वेरी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वी हैव यूज सब क्वेरी, जहाँ पे मैंने ये वैल्यू निकाल लिया मेरा टेबल से, फंक्शन टेबल से। तो ये एक्चुअली जो सब आउटर क्वेरी रन हो रहा है फ्रॉम, ये एक्चुअली इससे ही रन हो रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टार एंड, ये जो कैलकुलेशन हुआ इसको भी ये लेके जा रहा है। मतलब ये टेबल के साथ साथ एक और एडिशनल कॉलम ये लेके जाके आउटर क्वेरी में को दे रहा है कि भाई मेरे पास ये टेबल का तो सारे कॉलम है ही, प्लस ये भी कॉलम दे रहा हूं, तुम अभी जो करना है करो तुमको। एंड इट लुक्स वेरी नीट राइट, इजीली अंडरस्टैंड है कि भाई इनर क्वेरी पहले रन हो रहा है, फिर मेरा आउटर क्वेरी में लेके जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वेयर यू कैन यूज सब क्वेरी एज ए टेबल। हम लोग बताया था ना, सब क्वेरी कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट, इन फ्रॉम एंड वेयर आल्सो, वी डिस्कस दोस थिंग्स राइट। इसमें ही लिखा है, रुको दिखाता हूँ, इसमें लिखा था ना, ये सब क्वेरी में आकर इन सिलेक्ट क्लॉज, सिलेक्ट का हम लोग देख लिया था उस दिन, फ्रॉम का भी देख लिया था इनर जॉइन में राइट। लेकिन फ्रॉम का डायरेक्ट एज ए टेबल तुम लोग नहीं देखा था, देखा था लेकिन इनर जॉइन में मैंने यूज किया था। लेकिन इनर जॉइन में समटाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाता है ना, कितने सारे कुछ हो रहा है। अब इसमें तो इजीली समझ में आ रहा है ना कि ये एज ए डायरेक्ट टेबल यूज हो रहा है, देखो ये सब क्वेरी को आफ्टर फ्रॉम वी आर यूजिंग एज ए टेबल, ओके, एंड इसमें हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। समझ में आ गया ये फ्रॉम के साथ जो है। तो फर्स्ट वैल्यू तुमको समझ में आ गया, प्लस सब क्वेरी का यूज भी समझ में आ गया। इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ, कुछ भी डाउट है तो पूछो।
मतलब कैसे लिख रहे हैं क्या है, क्योंकि सब क्वेरी यू गाइस ऑलरेडी नो, ये भी तुमको समझ में आया, तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ डाउट होना चाहिए। कुछ डाउट है? नहीं है ना? नो। ठीक है, तो चलो अभी लास्ट वैल्यू में जाते हैं, ठीक है। लास्ट वैल्यू अभी आ जाएगा, लास्ट लास्ट वैल्यू इज नथिंग बट सिम उल्टा है लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो मेरा अभी ये टेबल दोबारा करते हैं, देखते हैं एक बार क्या क्या है, उसके बाद लास्ट वैल्यू को भी देख लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में रखो, कभी कुछ पूछे तो कोई एटलीस्ट बता पाओ, ये इतना मुझे लगता नहीं आएगा शायद, पता नहीं, बट जान के रखो, ठीक है। ये मेरा था टेबल, ठीक है। इसको मैं स्नाइपर टूल से स्नाइप करके रखता हूँ ताकि इट बिकम इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, रिलेट दोस टू, ओके। तो अभी जैसे इसमें मैं लास्ट वैल्यू का क्या है, सेम है, फर्स्ट वैल्यू लिखा था, इसमें लास्ट वैल्यू लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो इसकी जगह मैं लास्ट लास्ट कंप्लीटेड टाइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे ये क्या कर रहा है, सेम चीज ही कर रहा है ना। इसमें क्या था, तो इसने क्या किया बताओ, ये 90 था ना नीचे, तो 90 का सब में 90 लेके आया। पार्टीशन किससे करे हम लोग, वर्क डेट से। वर्क डेट क्या है पार्टीशन, सी, leave remove the partition for now, let's see how it shows। ओके, बिकॉज हम लोग वर्क डेट से ऑर्डर बाय कर रहे हैं ना, तो इसमें ये है कि भाई ऑर्डर बाय से भी पार्टीशन कर रहा है, इसमें पार्टीशन बाय लिखो ना लिखो ये उल्टा जा रहा है ना, इसलिए ऑर्डर बाय में भी तुमको वैसा ही दिखा रहा है, 90 का 90 दिखा रहा है, 65 को इधर दिखा रहा है, ये जो ये था 100 दिखा रहा है। अगर मैं ऑर्डर बाय को लिख के इधर पार्टीशन बाय में ई नेम लिखता हूँ, देन विल सी हाउ इट बिहेव, ओके। अभी देखो, अभी सबका सभी आ रहा है, मतलब इसमें एक्चुअली ये समझ में आ गया हम लोग को कि पार्टीशन बाय ना भी लिखो तो चल जाएगा, अगर लिखो तो सेम लिखो, अदरवाइज ना लिखो तो भी चल जाएगा। ऑर्डर बाय इसलिए लिखो ताकि ऑर्डर बाय कर दे, अगर जैसे इसमें अगर मैं ई नेम लिखूं तब देखना हो जाएगा, तब देखो आ गया 80 का 80 आ गया, अब नाम के हिसाब से हो रहा है, तो इसमें पार्टीशन लिखो ना लिखो तब भी वो ऑर्डर बाय एक्चुअली उस वो काम को पार्टीशन के हिसाब से ही कर देता है, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम बिलो, ठीक है। इसमें ये एक एक कैच है, ठीक है। इसमें ये है कि लास्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में लेकिन जरूरत है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में हम लोग देखा राइट, उसमें जरूरत है। उसमें ऑर्डर बाय अगर पार्टीशन बाय नहीं लिखोगे ना तुम, ऑर्डर बाय फर्स्ट वैल्यू में तुमको ऑटोमेटिकली नहीं दे रहा है, वो बस पूरा टेबल को ही एज ए पार्टीशन ले रहा है, देखो पूरा टेबल में ही एक ही दे दिया। फर्स्ट वैल्यू इज फाइन क्योंकि पहले से ले रहा है, लास्ट वैल्यू में लेकिन वो नहीं हो रहा है, लास्ट वैल्यू में क्या हो रहा है, या तो पार्टीशन भी लिखो तो दोनों सेम ही लिख दो, नहीं लिखो तो भी ये एक्चुअली पार्टीशन कर दे रहा है। देखो लास्ट वैल्यू ऑर्डर बाय एक्ट एज पार्टीशन, ओके। ठीक है, इट इज एक्टिंग एज ए पार्टीशन, इसमें समझ में आया, नीचे से लेके जा रहा है। सपोज ऑर्डर बाय मैं दे दिया इसमें ई नेम, तो ई नेम के हिसाब से दे दिया, अगर मैं डेट के हिसाब से दूं वर्क डेट, तो वर्क डेट के हिसाब से दे देगा, ठीक है। इसको ये समझ में आया कि नहीं अभी? यस। यस। एक बार देखते हैं दोनों देख के, देखो R&D करो, कुछ भी लिख के देखो, ट्राई करो। अब ऐसे क्यों एक एक सिंगल सिंगल दे रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर भी किया दोनों को, दोनों के हिसाब से पार्टीशन बनाया, तो हरी और एक ही है रो, एक पार्टीशन हो गया। नील एंड वन एक ही है, नील वन का दूसरा है क्या, नहीं है ना, सबका इंडिविजुअल एक यूनिक यूनिक हो गया ना, तो इसलिए दो लिखने से हम मुझे सेम ही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। समझ गया?
लास्ट वैल्यू समझे? अगर कुछ एडिशनल आता है मुझे जो भी प्रैक्टिकल उस सिनेरियोस के लिए, तो मैं ये गो थ्रू करूंगा एक बार, ठीक है, बाद में। फिलहाल के लिए समझ में आया कि नहीं? Yes. ठीक है। Yes. अभी आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लीड एंड लैग, ठीक है। द लीड फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सबसिक्वेंट रोज along with data from the current rows, ठीक है। क्या बोल समझ में आया? Subsequent means the next below rows. Lead works as a below rows. Lead function is used to access data from below rows or subsequent rows. ये याद रखना है टर्म, subsequent rows along with the data from current row. Lead जब यूज करते हैं वो current row से, जिसमें तुम यूज कर रहे हो उस current row का नीचे एक रो जाके उससे डेटा लेगा। Let function do the opposite thing. ये ऊपर से प्रीवियस रो से लेगा, ठीक है। दिखाता हूँ एग्जांपल्स, बस ये याद रखो, ये होता है नीचे के रो से लीड, सब्सिक्वेंट से लैग होता है, ऊपर के रो से प्रीवियस से। एंड ऑर्डर बाय क्लॉज इज रिक्वायर्ड व्हेन वर्किंग विद लीड एंड लैग फंक्शंस, बट ए पार्टीशन बाय क्लॉज इज ऑप्शनल। मोस्टली पार्टीशन बाय हम लोग देखा ऑप्शनल ही होता है, राइट, ठीक है। सो लीड क्या था? सब्सिक्वेंट, ठीक है, लीड था सब्सिक्वेंट। चलो पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। ओके, सो अभी इसमें कुछ समझ में आया? पहले पार्टीशन हटा देता हूँ। पार्टीशन वाज लाइक नॉट मैंडेटरी, राइट, ठीक है। अभी कुछ समझ में आया? बताओ, देखो उसको और बताओ। ये मेरा नया कॉलम है, ठीक है, बोलो। इजी है ना? लीड मैं किस में ले रहा हूँ ये बस ध्यान दो। लीड वेयर आई एम अप्लाइंग, लीड आई एम अप्लाइंग इन कंप्लीटेड टाइम, कि कंप्लीटेड टाइम में मुझे लीड निकाल के दो, दैट मींस दिस टाइम। एंड ये मेरा रिजल्ट है, मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला है ऊपर जा रहा है। 90 90, 75 को 75 कर दिया, 60 को 60 कर दिया, 65 65, 70 70, 80 80, ऊपर, हाँ, 100 100, और इधर कुछ नहीं था उसके नीचे, इसलिए नल कर दिया कि मेरे नीचे और कुछ ही नहीं आया ही नहीं, तो मैं क्या ही लाऊं, नल है। अंडरस्टूड? Yes. ये एक बार सोच के बताओ, तुम लोग के ऑफिस में हाउ यू विल यूज दिस लीड, कहाँ पे यूज होता है? या लेके मतलब लीड अभी कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस डे का मतलब नेक्स्ट डे का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आज के साथ। ऐसा कंपैरिजन कब होता है कि हम लोग देखते हैं ना कि पहले दिन से अपना कितना ज्यादा हुआ कितना कम हुआ, किस में कुछ कभी फेस किया है ऐसा, कभी सोचा देखा कभी? हर कंपनी में होता है ना, हर प्रोजेक्ट में तो वही है ना। तुम लोगों को कुछ तो इन्वेंट्री आता होगा ना। कल कुछ मान लो कुछ फाइल्स आए तो इतने आए, वो कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, कल के कंपेयर में हम लोग ने कितना आज कंपेयर किया, लीड लैग आगे का पीछे का डेट का हिसाब से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली यूज होगा। ऑल्दो मैं तुमको बोल रहा था ना कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इतना मैंने देखा नहीं, मतलब इतना मुझे मिला नहीं, बट ये मुझे मिला है लीड एंड लैग्स का, ठीक है। वो लोग को कंपैरिजन चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इजीली ये यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल समझ में आ गया, राइट, कि ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली एक एक को ऊपर कर रहा है। सो लीड इज व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ लीड? लीड फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सब्सिक्वेंट रोज along with the data from the current rows। तो करंट रो के डेटा के साथ हम लोग सब्सिक्वेंट रो के डेटा को ऊपर लेके आते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे ये सब्सिक्वेंट रो था ना, नीचे नीचे का सब्सिक्वेंट, राइट, तो उसको लेके आ रहे हैं एक साथ करंट रो पे। ये जब इसके लिए रन हो रहा है तो ये सब्सिक्वेंट को इधर ले रहा है और करंट रो को के साथ प्लेस कर रहा है। वो ही बोल रहा है करंट रो मींस वो एक एक रो वाइज हो रहा है, राइट। अब जब इस रो पे गया 90 के लिए, ये मेरा करंट रो हो गया। इसके नीचे जो आया 75, इसको लेके गया करंट रो के साथ प्लेस कर दिया। फिर 75 मेरा करंट रो पे जब हुआ, तब 60 को लिया एंड इट प्लेस विद द करंट रो ऑफ 75, ठीक है। तो ऐसे ऐसे किया, ओके। तो सिमिलरली वर्क डेट की जगह ई नेम कुछ डिफरेंस आता है क्या, वो देखेंगे। जब 111 था तो उसके हिसाब से आगे पीछे ले रहा था, ये था मेरा, ठीक है। और जब मैं ई नेम करूंगा तो
नील नील आएगा, हरी 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 आएगा, ऋतु ऋतु आएगा, राइट, एक साथ आ जाएगा। तब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उसका कैलकुलेशन, क्योंकि तब ई नेम के हिसाब से करेगा। देखो चेंज हो गया, चेंज हुआ, क्योंकि अब नेम से कर रहा है कि भाई इस नेम का नल था, ये 100 आ गया, 75 आ गया। जैसे ऋतु 18, ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ ऋतु 18 में क्या था। ऋतु 18 इसमें था 75 था, अभी कितना आया 75, राइट। नील 18, नील 18 में कितना था 65, अभी कितना है 100 आया। देखो 120 के साथ 65 है, पहले 100 था। तो ये वैल्यू चेंज होता है बेस्ड ऑन ऑर्डर। मैंने ऑर्डर ही चेंज कर दिया ना, क्योंकि 100 पहले क्यों 100 आया था बताओ। पहले 100 इसीलिए आया था क्योंकि मेरे नीचे जो था ना वो हरी था, नील के नीचे हरी था। अभी नील के नीचे नीली है ना, 2 तारीख का नील है। 1 तारीख के नीचे 120 के नीचे 2 तारीख का नील है, राइट। And earlier when we ordered by work date, that time we had Hari placed just below nil. That's why we got Hari's 100 in Nil's current lead example. ठीक है, ये चला गया था इधर, ये चला गया था इधर, राइट। लेकिन अभी क्या है, अभी मैंने ऑर्डर बाय किया ई नेम से, समझ में आ रहा है ना। तो ऑर्डर बाय किया ई नेम से, तो ऑर्डर ही चेंज हो गया ना, इसका टेबल का ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसीलिए जो भी तुम्हारा टेबल ऑर्डर के हिसाब से, आई टोल्ड यू राइट, ऑर्डर बाय इसमें पहले रन होगा, ऑर्डर कर देगा, उसके हिसाब से तुम्हारा बाकी लीड दिखाता रहेगा कि भाई मेरा कौन सा लीड है दिखा दो। सपोज 62 गया, 60 गया, 80 आएगा, इसमें 80 आएगा, ठीक है, 90 में आ गया, ठीक है, समझे, समझ में आया। यस। अब मैं अगर पार्टीशन यूज करूंगा तब क्या होगा बताओ, कोई एक एग्जाम बताओ मुझे। अगर पार्टीशन बाय ई नेम कर लिया तो क्या होगा। तो फिर वो ई नेम के अकॉर्डिंग वो लीड देगा। देखते हैं क्या होता है। इसको रख दो, वर्क डेट रख देते हैं ग्रुप में, मुझे वर्क डेट कर दो ऑर्डर बाय, ठीक है। अब मैं पार्टीशन के हिसाब जाता हूँ। तो अभी देखो क्या हो रहा है, नल नल ज्यादा आ रहा है, ठीक है। क्यों नल आ रहा है, क्योंकि आई टोल्ड यू राइट, पार्टीशन इज नथिंग बट इट इज क्रिएटिंग ए डिफरेंट टेबल इटसेल्फ, राइट। तब भी तुम्हारा नल आ रहा था, किस में आ रहा था नल, लास्ट वाले में आ रहा था, राइट। लास्ट वाले में तब भी नल आ रहा था, राइट, ये यस। क्योंकि इसके नीचे था ही नहीं कोई भी डेटा, इसके नीचे डेटा ही था नहीं, कहाँ से लाएगा ये डेटा, ये ऊपर जा रहा है ना एक एक करके, तो इसके नीचे था ही नहीं, कहाँ से लाएगा, तो इसलिए ना ला रहा था। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें तुम्हारा, तुम बोले ही हो कि मेरे को टेबल 3 टेबल में पार्ट कर दो, पार्टीशन माय एंटायर टेबल इनटू 3 पीसेस बाय द हेल्प ऑफ ई नेम। सो मेरा ये एक टेबल ही हो गया, ये एक मेरा टेबल बन गया, और ये एक मेरा टेबल बन गया, राइट। 3 टेबल क्रिएट हो गया। अब जब मैंने बोला कि मेरे को कंप्लीटेड टाइम लीड दे दो, तो दे रहा है ये 60 आ गया 60 का, 80 आ गया 80 का। लेकिन हरी के लिए नीचे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये खत्म हो गया ना टेबल, ये इधर ही, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इधर नल दिखा दिया कि मेरे भाई नीचे और कुछ है नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा पार्टीशन बाय इनेम लिखा था ना, अब भुगतो, नाउ एडजस्ट दिस नल, ठीक है। तुमने इनेम क्यों लिखा था पार्टीशन बाय, अब तुमको हम तुमको नल देंगे क्योंकि मेरे नीचे कुछ है भी नहीं। समझ में आ रहा है। इसमें भी सेम चीज हो रहा है, 65 ऊपर गया, 70 ऊपर गया, लेकिन नील के नीचे कुछ है ही नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, तो फिर ये अब क्या आएगा, नल ही आएगा। सिमिलरली रिटू का भी ये आखिर तक आ गया, और इसके नीचे कुछ भी है ही नहीं, क्या आएगा फिर, नल आएगा। कुछ नहीं है मतलब क्या, नल है, राइट, समझे। यस। यू गॉट इट राइट। सब बोलो यार, अगर नहीं समझ में आया तो यस। मैं और समझाऊंगा। समझ में आ गया, गॉट इट। ठीक है, सो अगर ई नेम की जगह मैं इधर वर्क डेट लिखता हूँ, ठीक है, तब देखना क्या होता है। तब वर्क डेट के हिसाब से हो रहा है मेरा नल, पहले नील नील के हिसाब से हो रहा था ना, नील हरी और ऋतु के हिसाब से हो रहा था, राइट। अभी मेरा टेबल क्रिएट हुआ है वर्क डेट के हिसाब से,
इसके हिसाब से हो रहा है क्रिएट। ये एक टेबल क्रिएट कर देगा पूरा डेटा के साथ एक, फिर ये एक टेबल क्रिएट कर देगा पूरा डेटा के साथ, ठीक है। वन पार्टीशन, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। और इसको जब जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है लेकिन इधर कुछ है ही नहीं नीचे, तो नील नल आ गया डेट के हिसाब से, इंडिविजुअल डेट का। समझे? मान लो कंप्लीट डेट के लिए नहीं बोल रहा वो लोग बोला वर्क रिसिप्ट। आई नीड वर्क रिसिप्ट, ठीक है वर्क रिसिप्ट लिख दो तुम। दिस नथिंग लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल की तो कि तुमको उसी में बस अप्लाई होता है कंप्लीटेड में। अब देखो वर्क रिसिप्ट, रुको इस कॉलम को मैं इधर लाता हूँ ताकि तुम लोग इजीली विजिबल कर सकते हो इसके नीचे ये है कि नहीं। तो मैं कॉमा के बाद एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ इधर, ये कॉमा लेके आता हूँ तो डबल डबल आ जाएगा ये, लेकिन मैं लास्ट में भी लेके आया, मतलब इसको सेम वैल्यू है। सो देखो 120 गया ऊपर, 110 गया ऊपर। वी हैव गिवन पार्टीशन बाय वर्क ऑर्डर, सो इसमें इसके 1 तारीख के नीचे और 2 तारीख है, 1 तारीख और है ही नहीं कोई भी। दैट मीन्स सिमिलर वैल्यू का पार्टीशन, पार्टीशन मीन्स नथिंग बट whatever the similar value available in the work date make a partition। अगर उसमें सिमिलर वैल्यू नहीं होगा तो एक रो ही एक पार्टीशन हो जाएगा। सपोज पार्टीशन बाय में अगर ई नेम डाल देता हूं तो ये देखना एक एक रो को ही डाल देगा, सब नाल आ जाएगा। देखो सब नाल आए, क्यों? करो हिसाब। देखो हरी और 1 तारीख सिमिलर कहीं है क्या? हरी और 1 तारीख नहीं है ना, तो एक रो बन गया ना, एक पार्टीशन। तुम बोल रहा हो कि मेरे ये दो नेम जहां पे यूनिक हो उसी के हिसाब से पार्टीशन बनाओ, तो ये यूनिक दोनों को मिला के एन नॉट और, ठीक है। वर्क दैट एन ई नेम, हरी एन ई नेम। तो देर आर हरी बट विच आर नॉट फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का है, तो इंडिविजुअली एक एक टेबल बना दिया ना, पार्टीशन बना दिया, तो इसलिए नल आया। क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। नल क्यों है इसमें बता रहा हूं, देखो जैसे ये एक पार्टीशन बना दिया, ये एक पार्टीशन बना दिया, ये एक पार्टीशन बना दिया, ऐसे सब लाइन को एक पार्टीशन बना दिया, तो एक एवरी लाइन के नीचे कुछ तो मिलेगा नहीं ना उसको, तो ऊपर इसलिए नल जा रहा है। वो ढूंढ रहा है नीचे से ही, नीचे उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए नल दे रहा है। समझ आया मित्रों? सो गए क्या? हाँ अरे बताओ यार, तीनों अनम्यूट करो, बताओ। I समझ समझ में में आया आ कि got it. गया भाई। हाँ? गॉट इट, गॉट आ इट। गया समझ में? यू कैन आस्क। ओके। तो सिमिलरली लैग, लैग इज व्हाट? द अदरवाइज, प्रीवियस वाला, ठीक है, प्रीवियस रो का। तो हम लोग लैग का देखेंगे अभी, ये हो जाएगा प्रीवियस, ये ऊपर से लाएगा। इसमें नल कहाँ आएगा अब बताओ? तुम लोग को आइडिया हो गया, जैसे नीचे से नल आ रहा था, ऊपर वाले को कहाँ से नल आएगा? ये ऊपर वाले में नल आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से कुछ भी मिलेगा ही नहीं उसको। समझ आ रहा है? उसके नीचे में फिल होगा, ऊपर वाले में नल Yes. आएगा, देखना। सो अंडरस्टैंड, लाइक दिस इज वेरी इजी टॉपिक। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, तो तुमको बहुत मतलब इजी हो जाएगा इससे चीजें, ठीक है। सो लेट मी डू दिस नाउ, लैग एग्जांपल। सो देखो बोला था ना, ये क्या है? पार्टीशन बाय ई नेम है। ई नेम के जैसा पार्टीशन किया 3 ग्रुप में, ठीक है। 1 2 3 ये है पार्टीशन, पार्टीशन, ठीक है। तो इस पार्टीशन ई नेम के हिसाब से ये 3 पार्टीशन बना दिया, एंड देन इट इज चेकिंग फॉर द प्रीवियस वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड टाइम। लैग मींस प्रीवियस वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड टाइम। तो प्रीवियस वैल्यू इसमें क्या है? 100 के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये नल लेके आ गया। फिर 100 को लेके आ गया इधर, फिर 60 को लेके आ गया। अगर मुझे मेरा इन्वेंट्री कंपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस, मैं कल कितना किया था आज कितना किया, डेली वाइज ये मुझे कंपैरिजन बताएगा। ये प्रीवियस का है, ये लैग है। और लीड हो गया नीचे से, मतलब कल मैंने कितना किया, मतलब एक दिन को मैंने कितना किया था, एक पर्टिकुलर डेट को, उसके प्रीवियस डे मैंने कितना किया था उसको कंपेयर करते, वो उल्टा होता है। अब देखना, ये कंप्लीटेड की जगह दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, वर्क रिसीव डेट, कंप्लीटेड डेट, कुछ भी लिख सकते हो, राइट? जैसे उसमें किया था जैसे भी वही होगा। सपोज मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी एनोटेशन को,
ठीक है, क्लियर माई ड्रॉइंग। और इसमें मैं और पार्टीशन में लिखता ही नहीं हूँ कुछ भी। उधर जब नहीं लिखा था क्या हुआ था, सबके लिए आ गया था, ऊपर से एक नल आ गया था, इसमें भी वही होगा। इसमें लेकिन फर्स्ट ऑन लास्ट वाले जैसा था ना लास्ट में, कि पार्टीशन में थोड़ा काम नहीं कर रहा था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सब कुछ इसकी तरह एज इट इज है, ये जैसा था ना ये वैसा ही फंक्शन करेगा, जस्ट वाइस वर्सा। इसमें नीचे से लेके जा रहा था, इसमें ऊपर से लेके आएगा, ठीक है। और इसमें देखो ऊपर से लाया था, इसीलिए 120 के ऊपर कुछ नहीं था तो नल लगा दिया, 120 को 120 लाया, 100 को 100 लेके आया, ठीक है। ये रूट चल रहा है, ठीक है, ये रूट चल रहा है। इधर कुछ नहीं था इसीलिए नल लेके आ गया। समझ आ गया? इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज ये कहाँ पे कैसे यूज होगा। सपोज ये मैं पार्टीशन बाय बाद में करता हूँ, पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो सपोज तुमको अभी ये मिल गया प्रीवियस डे का, तो यू नीड टू नो मैं प्रीवियस डे के हिसाब से मेरा कितना मैंने कंप्लीट किया। तो वही तुम दोबारा सब क्वेरी में लिख सकते हो, या तो इधर भी लिख सकते हो अगर तुमको जो जैसा मन। लेकिन सब क्वेरी में थोड़ा इजी होता है, अगर इधर भी लिख सकते हो कंप्लीटेड टाइम, सपोज लीव इट कंप्लीटेड टाइम। आई एम गिविंग यू ए मोर प्रॉपर एग्जांपल, वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो टाइम का तो कुछ देखना नहीं होता है ना, मोस्टली कंप्लीटेड का ही होता है। सो वर्क कंप्लीटेड एंड लेग एग्जांपल, ठीक है, ये आएगा। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ इसमें क्या है एक्चुअली। इसमें तुम बोल रहे हो मेरा वर्क जो कंप्लीटेड है, ये यार आगे पीछे थोड़ा इस कॉलम को इस कॉलम से देखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने अभी वर्क कंप्लीटेड के हिसाब से किया है। तो ये बीच में ऐसे ही एक कबाब में हड्डी आ गया, तो इस हड्डी को हम लोग थोड़ा सा साइड कर देंगे, या तो इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे ताकि मुझे थोड़ा सा समझने में इजी रहे और समझाने में इजी रहे, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग इसमें यू चंदू यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्टॉप मी देन एंड देयर, ओके। So now I just bring this column near to this derive column. This is called a derive column, right? We are deriving it. Originally in this table, this column was not there. So instead of lag example, I am giving this a proper name. Lag में भी वो ई डाल दिया, एक wrong ही था वो नाम. So completed comparison, a completed, okay, ठीक है. इसमें लिखता हूँ lag completed, ठीक है, lag completed, okay. आ गया, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा था, मुझे अभी चाहिए एस एस पर माई वर्क कंप्लीटेड द डिफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैग कंप्लीटेड। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो तुमको लगता है मुझे देगा ये रिजल्ट? क्यों नहीं देगा बताओ? ये बोल रहे तुम्हारा कॉलम नेम इनवैलिड है ये, क्योंकि मैं तुमको बोला था ना विंडोज फंक्शन को तुम विंडोज फंक्शन में जो भी एलियास यूज करते हो उसको तुम सेम सिलेक्ट और फ्रॉम के अंदर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो प्रोसेस हो रहा है अभी ना, इट इज जस्ट प्रोसेसिंग इनसाइड। तुम इसी के इनसाइड तुम ये लिख रहे हो तो कैसे होगा? या तो पूरा लिख दो ये जो फॉर्मूला है, तब होगा। अब देखना अब आएगा, आ गया। इसको लिख दो कंपैरिजन, कंपैरिजन कंपेयर्ड कंप्लीटेड, ठीक है, कंपेयर्ड कंप्लीटेड, कंपेयर टू क्या, प्रीवियस डे, राइट, प्रीवियस, ठीक है। तो अभी तुम देखोगे ना इसमें क्या हो रहा है। देखो मैंने काम किया था 1 तारीख को 22, क्योंकि प्रीवियस डे में कुछ था ही नहीं तो नल नल था, मेरे को कुछ जरूरत नहीं उसका। उसके बाद सेकेंड डे मैंने काम किया था 22, नहीं 30 किया था 30। सो माई लैग विल ब्रिंग दैट प्रीवियस डेज वर्क जस्ट इन फ्रंट ऑफ 30। सो इसका मैं माइनस कर दिया 8, तो प्रीवियस डे के हिसाब से आई डिड मोर 8 इन्वेंट्री, okay, I have completed more 8. If you see the very next day Ritu completed 25। अब यार रितु 25 किया तो प्रीवियस डे 30 किया था, तो डिफरेंस आ गया -5 का। लेकिन इसमें एक कैच है,
ये ऋतु, हरि एंड नील है, सब इंडिविजुअल है, सबका प्रोडक्टिविटी कैपेबिलिटी डिफरेंट है, सबका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, सबका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मे बी सबका डेजिग्नेशन भी डिफरेंट होगा. सो जस्ट टू गेट प्रॉपर डेटा, व्हाट यू विल डू नाउ, यू विल डू पार्टीशन बाय, ताकि एक एम्प्लॉय के हिसाब से मैं देखूं कि वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है. अंडरस्टूड? कि वो एम्प्लॉय कंपेयर टू प्रीवियस डे कितना काम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है. अभी देखना, अब देखो मेरा, ओके ऑर्डर बाय भी एम्प्लॉय नाम में लिख देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजिंग ना करे. ये आया करेक्टली, नल नल आ गया एक साथ, मतलब डेट के हिसाब से ऑर्डर बाय था. सो अभी देखो परफेक्टली क्या हो रहा है. ओके सॉरी, I changed this partition by here. I should change in this also, right? Because वो उसी का एक था ना, एक कि मैं कंपेयर कर रहा था. सो मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसको भी रख देता हूँ पार्टीशन बाय को. कहा था लीड कंप्लीटेड बाय ओवर पार्टीशन बाय, ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग लाइक टू बेटर टू यूज सब क्वेरी. तो इसमें तुमको एक ही बार इसमें करने से ही ऑटोमेटिक उधर दिखाई देगा, क्योंकि उधर में बस तुम एलियास नेम यूज कर रहे हो, नॉट लाइक दिस थिंग्स. सो नाउ इफ आई रन इट, सी हरी हरी हरी, नील नील नील. So if I show you now, this is one table, this is one table, and this is one table, one partition, right? These are partition, not tables. Just I'm telling you so that like act as a table only. It's a partition. They are partitioning on those 3 or 4. Okay. So now you check here how it is treating. समझ में आ रहा है कैसे ट्रीट हो रहा है? देखो, कंप्लीटेड वर्क कंप्लीट जो किया था उसका प्रीवियस डे का ले आ रहा है. मैं तुमको बोला था ना व्हाई आई एम पार्टीशनिंग बाय ई नेम, क्यों कर रहा था? क्योंकि देखो हरी एंड नील का मुझे कंपेयर बाद में करूंगा. फर्स्ट आई वांट टू कंपेयर हरी itself, like हरी how much he is doing every day, what is the deviation, his everyday deviation, is it too much, is it like Monday he is doing 100, then Tuesday he is doing only 20, or Friday he is not doing itself, going for party. And you need comparison, right? And you now even do not need this also. This is not required because I'll tell you later on. Just first understand this. Okay. So work completed by Hari, work completed by Neil, work completed by Ritu. So now see 25 30 it came, 25 came here. ठीक है. अभी ये देखो, as compared to previous day, 2 सेकंड को ये 5 कम किया, 8 को ये दोबारा 5 कम किया, तो टोटल मिला के 10 कम हो गया ना इसका 2 दिन का. तो इसको 2 दिन में भी कर सकते हो तुम, जैसे एक एक दिन का देख रहे हैं ना, इसको 2 दिन में भी कर सकते हो. विल गो थ्रू दोस थिंग्स. 3 डेज का भी लैग लगा सकते हो, ठीक है? समझे तुम? मतलब 2 दिन का भी देख सकते हो, गैप भी दे सकते हो ऐसा. वी कैन राइट दैट. So but for now we are just going through the simple things so that we understand the topic. So ये हमने पार्टीशन किया, इसीलिए पार्टीशन वाइज दे रहा है. जैसे इसमें देखो नील, नील ने क्या किया, 1 तारीख को किया 22, 2 तारीख को 15 में आ गई, 3 तारीख को देखो 5 में आ गई. तो as compared to previous day there is a 10 deviation, but as compared to previous day there is 17 deviation. 22 minus 5 17, this right? तो समझे ये कहाँ काम आएगा? समझ रहे हो ना कहाँ पे काम आएगा ये? Yes. अगर मुझे जैसे Yes. तुमको ये रिपोर्ट मांगे कि मुझे कंपैरिजन दो कि प्रीवियस डे के हिसाब से कितना किया, ठीक है? एंड यू डू नॉट नीड टू गिव दिस पर्टिकुलर कॉलम, जस्ट गिव दिस कॉलम. इसको कमेंट कर दो, ठीक है? ये नॉट रिक्वायर्ड. अभी फिलहाल तुमको मैं समझाने के लिए समझा दिया लैग का. तुम वर्क कंप्लीटेड माइनस ये वाला जो था ये लिख दो, और इसमें एलियस लिख दो. एस लिखो भी ना लिखो भी एलियस, मतलब एज ए एलियस ले लेता है. एस ये कंपेयर्ड कंप्लीटेड बेस्ड ऑन प्रीवियस डे, ठीक है? बेस्ड ऑन प्रीवियस डे, सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली यार, नहीं तो पंगा हो जाएगा. इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ताकि तुम लोग को सब कुछ दिखाई दे, ठीक है? सो इफ यू नाउ सी, it is giving directly with the help of lag function. You are doing the minus with completed, work completed. So it's doing nothing but 25 35 25 25 5. This is null because we are partitioning by ename. Then again
For 15 it is giving 7 because 22 was 7 more, so it is giving minus. It is comparing previous day. So always remember, lag compares the previous day and lead compares the next day. ठीक है? Lag compares with previous day and lead compares with next day or following day. ठीक है? Simple and sweet. क्या हुआ? कंपेयर हो गया. ठीक है, समझ में आ गया अभी ये सब चीजें क्या हो रहा है? Yes. ओके, सो मैं ये क्यों रखा था वाई विंडोज फंक्शन, ये तुमको एक चीज दिखाने के लिए रखा था. एट अ ग्लैंस इट डज नॉट मेक मच सेंस ऑफ रिपीट द सेम वैल्यू फॉर एवरी रो विद इन द विंडोज फ्रेम. तुम लोग को लग सकता है कि क्यों हम लोग उसको बार बार रिपीटेड वैल्यू को ही क्यों यूज कर रहे हो विंडोज फ्रेम में. दिस नॉट रिक्वायर्ड, राइट? The reason is, the point is usually in combining Windows function with, we are combining actually Windows function with the additional logic. For example, the Windows sum function can be used to easily compute a percentage of each row's value to a bigger part. समझे? जैसे हम क्यों कर रहे थे ऐसे? सपोज जैसे परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं, इसके बेसिस से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि भाई मुझे परसेंटेज दो. ठीक है, ये जो 120 है तो ये कितना परसेंटेज, कुछ भी, जैसे सम 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 निकाल रहा था ना हम लोग. लेट्स गो टू सम. ओके, तब हमको समझाऊंगा कि क्यों हम लोग विंडोज फंक्शन का क्या फैसिलिटीज है कि हम लोग विंडोज फंक्शन यूज कर रहे हैं. इट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, जो भी तुमको रिक्वायरमेंट बोलता है उस हिसाब से हम लोग काम करते रहे. तो ये बोल सकते हो तुम, ये बार बार ये क्यों दिखा रहे हो यार, इसकी जरूरत क्या है. लेकिन इसके साथ हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कि टोटल से ऑर्डर अमाउंट का कितना डिफरेंस है या परसेंटेज कितना है. तो परसेंटेज के लिए क्या, इसमें जैसे ये वाला था ना क्वेरी, तो मैं एक और सब क्वेरी का एग्जांपल देता हूँ. तो व्हाई वी यूज विंडोज विंडो नॉट विंडोज विंडो फंक्शन एन एग्जांपल. ठीक है, दो it is giving us same value in rows. एन एग्जांपल. ठीक है, क्यों हम लोग विंडोज फंक्शन यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें हम लोग पार्टीशन किया था सिटी के, इसलिए सिटी वाइज दे रहा था. सपोज वी नीड परसेंटेज कि मेरा ग्रैंड टोटल सिटी वाइज लिया मैंने, तो चेन्नई का ये परसेंटेज ऑर्डर अमाउंट कितना परसेंटेज में, सपोज लिव विद द परसेंटेज, ये मुझे ये जरूरत नहीं है. और सम बम में ओवर के साथ ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं था, राइट? तो ये पूरा मिला के मेरा सम आ गया. तो मुझे चाहिए कि मुझे अभी इसका परसेंटेज दो, तो मैं सब क्वेरी बना लूंगा एक. इसमें भी लिख सकते हैं लेकिन मैं सब क्वेरी बना के लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को सब क्वेरी का हैबिट हो जाए थोड़ा सा. ठीक है, स्टार फ्रॉम, ये सब क्वेरी बना देता हूँ, ये सब क्वेरी बना देता हूँ. ये हो गया ए. सम में ऑर्डर बाय का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम इज सम. ठीक है, तो आ गया. और इसमें मेरा अभी क्या लिखना है मुझे, ये ग्रैंड टोटल, क्योंकि ये वाले जो पार्ट है ना इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है ये पर्टिकुलर ग्रैंड टोटल विद द हेल्प ऑफ सम वाला विंडोज फंक्शन, एग्रीगेट विंडोज फंक्शन. ठीक है, तो इसी में मैं ग्रैंड टोटल को यूज नहीं कर सकता हूँ. इसमें मैं पूरा ये, या तो ये पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज सब क्वेरी यूज करना पड़ेगा, या सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा. आउट लाइक इनर के बाद जो आउटर में रन होता है ना क्वेरी, उसमें मैं हमेशा समझो ये फर्स्ट रन होता है, इसके बाद जो आउटर क्वेरी हम लोग यूज करेंगे उसमें ये हम लोग के पास एज ए कॉलम जाएगा, ना कि एलियास जाएगा. तो वी कैन यूज ग्रैंड टोटल ऑल्सो. सो नाउ इफ आई नीड टू गेट द परसेंटेज, सो क्या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऑर्डर अमाउंट, राइट, ऑर्डर अमाउंट फिर डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, राइट, ब्रैकेट में दो क्योंकि डिवीजन पहले होना है, फिर इनटू 100. तो ये मेरा क्या हो गया, परसेंटेज. ये मैं एलियास नाम दे रहा हूँ. ठीक है, अमाउंट, percentage based on amount. So now if we run we will get the percentage. अब परसेंटेज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको कास्ट करना है. समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं लेता है ना, कभी कभी तुमको पता है ना, हम बताए थे. हाँ. कास्ट एज फ्लोट कर देता हूँ.
डेसिमल बोला था ना, या डेसिमल को चला होगा तो डेसिमल फ्लोट को भी नहीं हो सकता है, डेसिमल भी कर सकते हो, कुछ मैंडेटरी नहीं है। इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद हो गया, रखा है ऑलरेडी, देखेंगे आ रहा है कि नहीं। फ्लोट में आ गया, ठीक है। 5000 डिवाइडेड बाय 138,000, 1,30,000, ओके 1,30,000 है ना वो, इंटू 100। तो परसेंटेज कितना आया मेरा, 3.623 ना, 3.623, देखो वही आया, सेम आया, मतलब करेक्ट है। जैसे 15,000 डिवाइडेड बाय 138,000, ठीक है, इंटू 100, 086, नहीं 10 होना चाहिए ना, ये क्यों ऐसा, ये आगे कैसे जाएगा यार, इसको बड़ा ही कर लेते हैं, देखो 1086, ठीक है, करेक्ट आ रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा अच्छा देखने का राउंड कर लेते हैं यार, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वी कैन राउंड ऑल्सो, राउंड यूज कर सकते हैं। आई थिंक राउंड के बाद वो ये होता है ना शायद, हाँ देखते हैं, विल राउंड इट। तो देखो राउंड पर राउंड फिगर में आ गया, ठीक है। तो डेसिमल और फ्लोट, फ्लोट बताया था ना, फ्लोट भी सेम ही आता है। डेसिमल में तुम प्रेसिशन एंड स्केल डिफाइन करते हो, राइट, 2 डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का चाहिए इसमें, लेकिन मैं फ्लोट में वो दिखा नहीं था पूरा, जितना उतना आ रहा था, राइट। डेसिमल में तुम डिफाइन करते थे ना प्रेसिशन, इसमें डेसिमल भी लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल में डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं इजीली फ्लोट लिख दिया था कि मुझे जल्दी दिखा दे। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ ताकि स्क्रीन में पूरा कवर हो जाए, इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। क्या समझे अभी, परसेंटेज निकालने के लिए मुझे इस वाले ग्रैंड टोटल का जरूरत पड़ा है, राइट। अगर मैं ग्रुप बाय यूज करता इसमें, सपोज राना पूछ रहे थे ना उस दिन, ग्रुप बाय क्यों यूज नहीं करते विंडोज उसकी जगह, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ दिस, ये हटा दो, ठीक है, और फिर ऑर्डर आईडी ये सब ग्रुप बाय में आ जाएगा, फिर तो सब ग्रुप बाय में आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप बाय अमाउंट, ठीक है, ये वाला रन करते हैं यहाँ तक, तो ग्रुप बाय में आया 14 रो, लेकिन इसमें सम किस हिसाब से आया, पूरा का आया ना, क्योंकि टोटल सम के लिए मुझे किसी भी ग्रुप बाय को यूज नहीं करना पड़ेगा ना, टोटल सम जब निकालना होगा, क्योंकि ये ग्रुप बाय कर रहे हैं ना, अंडरस्टूड दोनों, समझ रहे हो ना। ग्रुप बाय में क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं एक एक को। यस। अगर मैं ग्रुप बाय में सब कुछ हटा दूंगा ना, ग्रुप ही नहीं लिखूंगा, सम लिखूंगा, तब मुझे जाके देगा ये कि भाई वो 13,100 है, लेकिन एक रो दे दिया, तो इसको मैं कैसे कम कैलकुलेट करूंगा। अगर तुमने बाई चांस मान लो इसमें तुम्हारा ऑर्डर आईडी भी डाल दिया तुमने इसमें, ठीक है, सपोज तुमने कस्टम सिटी भी डाल दिया इसमें, तो सिटी वाइज देगा ना। तो ग्रुप बाय और विंडोज फॉर उसमें यही डिफरेंस है, ये बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ ग्रुप बाय और इसका डिफरेंस। ग्रुप बाय में देखो पूरा टोटल थोड़ी ना आया, मैं मुझे क्या बोला गया था कि ग्रैंड टोटल का मुझे परसेंटेज निकाल के दो, तो तुम इससे निकाल ही नहीं पाओगे, इसमें तो ग्रैंड टोटल निकलेगा ही नहीं, या तुमको पहले सम निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा उस सम को तुम क्रॉस ज्वाइन करोगे, ठीक है। मतलब कैसे करके पता है, तब उस टाइम मैं बता रहा हूँ, क्रॉस ज्वाइन का ही बता देता हूँ, चलो I'll tell you how to solve these things with the help of cross join. सपोज जब एक होता है ना, क्रॉस ज्वाइन क्या बोलता था, हर किसी के साथ ज्वाइन करो, तुम्हारे पास एक ही है इस टेबल पे, सपोज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ओके, क्रॉस ज्वाइन, इसको एज ए टेबल क्रॉस ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या हो रखा है, क्या बोल रहा है, ओके इसमें एक नाम दे देता हूँ, एक्स, नहीं क्या बोल रहा है, नो कॉलम वाज स्पेसिफाइड, ओके सॉरी, एस सम, टोटल ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो अभी देखो सिमिलर रिजल्ट सेट आया, दोनों को रन करके दिखाता हूँ, सेम रिजल्ट सेट आया। तो क्रॉस जॉइन से भी हम लोग कुछ कुछ चीजें सॉल्व कर सकते हैं। देखो मतलब जो तुम्हारा ये था
सिमिलर आ गया। बस ये अचीव करने के लिए तुमको अभी दूसरा एक और बार लिखना पड़ेगा। क्रॉस जॉइन से तुम, क्रॉस जॉइन क्यों इसमें काम आया पता है? बिकॉज व्हाट क्रॉस जॉइन डू, क्रॉस जॉइन डू एवरी सिंगल थिंग जॉइन विद दिस टेबल। अब मेरे पास इधर एक ही था, 1 रो 1 कॉलम था, स्केलर वैल्यू था, राइट? वी हैड ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब क्वेरी, राइट? तो इसीलिए ये सबको ज्वाइन कर रहा था एक एक करके। तो डाटा कितना आना था? ऑब्वियसली एक ही आना था, रोज। 5000 को ज्वाइन किया 13800 से, एक आ गया। 15,000 को ज्वाइन किया 13 से, तो फिर एक आ गया, राइट? तो इसीलिए हम लोग को एक एक ही करेक्टली 14 रिकॉर्ड्स मिल रहे थे। सपोज इसमें दो होता ऑर्डर अमाउंट का, मान लो सम नहीं होगा, पूरा सारे होते, ठीक है, पूरे होते, सारे होते, कितने थे? सब होते। तो 14 इंटू 14 कितना होता? ओके सॉरी, पूरा इसमें लिखना होगा। तो 14 इंटू 14 जितना होगा ना उतना आता, मतलब हर एक किसी को, हर एक किसी से ज्वाइन कर रहा था। देखो 196, मतलब सबको सब ज्वाइन कर रहा था, इस अमाउंट को इस अमाउंट से। फिर 15,000, ये देखो 5,000 को सबके साथ ज्वाइन किया, फिर 15,000 को सबके साथ ज्वाइन किया, फिर 25 को सबके साथ ज्वाइन किया, फिर 7,000 को सबके साथ ज्वाइन किया। यू अंडरस्टूड राइट क्रॉस ज्वाइन क्या कर रहा है? समझ गए? यस। इसीलिए हम लोग क्रॉस ज्वाइन जब सम यूज कर रहे हैं या एवरेज यूज कर रहे हैं या तो एवरेज यूज कर रहे हैं, देन वी कैन यूज क्रॉस ज्वाइन सो दैट वी गेट एवरेज। टोटल एवरेज जब यूज करते हैं, ग्रुप बाई जहां यूज कर लिया ना, दो आ जाएगा। जैसे इसमें अगर ग्रुप बाय सिटी कर लिया ना, सिटी कितना था मेरा? 3 था, तो देखना 3 गुना और दे देगा रिजल्ट, ठीक है? अब देखना पूरा टोटल रन करूंगा, देखना सिटी वाइज आ गया। देखो चेन्नई का आ गया एक बार एवरेज, दिल्ली का आ गया कितना? 42 आ गया। 42 डिवाइडेड बाय 14, 3 गुना आया ना, क्योंकि 3 सिटी था, तो 3 टाइम वो दोबारा वो एवरेज निकाल लिया। 3 सिटी के एवरेज के हिसाब से एक के बाद एक को ज्वाइन करे जा रहा है, क्रॉस इधर से उधर ज्वाइन कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्रॉस ज्वाइन का जब इसमें यूज करते थे ना कभी कभी, तो फॉर इजी, लाइक ये थोड़ा टफ था देखने में, तुमको थोड़ा टफ लग रहा है तो ये यूज कर लो क्रॉस ज्वाइन, ये थोड़ा इजी है। जब सिंगुलर वैल्यू होता है देन यू कैन यूज क्रॉस ज्वाइन। सो नाउ इट विल गिव यू प्रॉपर एवरेज। तो मैं क्या पे था अभी? टोटल, ग्रैंड टोटल ना, सम। सो ग्रैंड टोटल में था। सो नाउ हाउ टू अचीव दिस विद द क्रॉस ज्वाइन, चलो ये भी देख लेते हैं एग्जांपल। लग गया तो क्रॉस ज्वाइन का भी एग्जांपल हो जाएगा। सो अभी क्या था हम लोग का, ये आ गया क्रॉस ज्वाइन का, हम लोग ने सबको मिला के ये कर लिया। अब मैं, मुझे ये फंक्शन चाहिए ना, ये वाला चाहिए। इस वाले को मैं कैसे अचीव करूंगा? देखो अब इसके थ्रू भी हम लोग वो चीजें निकाल सकते हैं, यही था ना रिजल्ट। सो यू हैव टू वेज टू फाइंड आउट द रिजल्ट। 14 आउटकम ही है, यही रिजल्ट था। उसमें भी देखेंगे दोनों का रिजल्ट मैच कर लेते हैं, अगर मैच करना है तो। इफ यू हैव एनी डाउट, लाइक you can match with both the result. So ये जो different different ways to achieve it a like outcome, right? उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने इमीडिएटली निकाला ना, ये तो मेरा प्लान में नहीं था ना कि मैं तुमको क्रॉस जॉइन दिखाऊंगा, राइट? है कि नहीं? आई वॉज नॉट थिंकिंग हाँ। लाइक आई विल शो यू क्रॉस जॉइन, लेकिन मेरे पास अचानक से दिमाग में आ गया, एंड while राइटिंग द कोड मैं फेल भी हुआ। So you will fail, but try. Maybe some other way, other trick you can apply. So suddenly it will succeed. And if you succeed, then you'll feel good that you're learning something, right? So देखो सबका सेम वैल्यूज है, right? सबका सेम ही है, सेम ही है। So you can achieve these things with the help of cross join also, but the condition is cross join. When you're joining a cross join, the subquery used in the cross join should be having only scalar item like one value. क्योंकि क्रॉस जॉइन दिखाता हूँ, क्रॉस जॉइन क्या काम करता है। दोनों टेबल में रन करता हूँ एक साथ। अब क्या हो रहा है पता है? इसमें जैसे मान लो ये एक टेबल है, सपोज इस टेबल को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो क्या कर रहा है ये इसके साथ? चलो इसको बंद ही कर देता हूँ यार, इसकी जरूरत नहीं है। सो इसके साथ क्या कर रहा है, इसको एक बार इससे कर रहा है ज्वाइन, फिर इसको एक बार और दोबारा कर रहा है, इसको भी कर रहा है,
इसको भी कर रहा है, सो एवरी टाइम इट इज गोइंग थ्रू एंड ज्वाइनिंग। सपोज इसमें मेरा और एक अमाउंट रहता 200, तो पता क्या करता, ये वाला 500 ही दोबारा जाके 200 में भी करता, 1500 वाला दोबारा जाके 200 में भी करता, समझे? इट वाज एवरी आइटम शुड गो 2 टाइम, सो इट विल बिकम डबल, 14 की जगह 28 हो जाता। सो दैट इज नॉट करेक्ट रहा, हम लोग को बस ग्रैंड टोटल के साथ परसेंटेज निकालना था एवरी रो का। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू केयरफुली यूज ऑल दिस लॉजिक्स। ठीक है, समझ में आ गया अभी? तो चलो क्रॉस जॉइन का तो समझ में आ गया, तो मैं हम लोग ऊपर जाते हैं। तो हम लोग कहाँ पे थे? सॉरी, मैं थोड़ा सा डेविएट हो गया क्रॉस जॉइन के चक्कर में। सो वी इवन अंडरस्टूड सम, राइट? सो आई वाज गोइंग थ्रू कि व्हाई वी नीड एट द फर्स्ट पॉइंट विंडो फंक्शन। We can have all the other options available, but I showed you कि क्यों हम लोग को विंडोज फंक्शन जरूरत पड़ता है। ग्रुप बाय के साथ we cannot do those things which we can achieve with the help of windows function. Windows function is actually not to get the derive this column with the help of windows function। जो भी तुम निकाल रहे हो ना, इस कॉलम को ही अचीव करना नहीं है, इस कॉलम के थ्रू अदर कुछ और भी निकालना होता है। उस दूसरा कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग को ये विंडोज फंक्शन का जरूरत पड़ता है। द सेम थिंग इज रिटन हियर, द पॉइंट इज यूजुअली इन कंबाइनिंग विंडोज फंक्शन विद एडिशनल लॉजिक। एडिशनल लॉजिक के लिए वी कैन कंबाइन विंडोज फंक्शन, वी कैन यूज विंडोज फंक्शन। द विंडोज सम फंक्शन कैन बी यूज्ड इजीली टू कंप्यूट ए परसेंटेज ऑफ फॉर ईच रोज। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए उस जो भी डेटा है उस पॉइंट्स का, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया अभी? क्लियर है ना? बहुत पूरा एकदम क्लियर कट है सब कुछ, कुछ भी डाउट है? कुछ भी डाउट है? नहीं है, राइट? तो हम लोग आज कवर किया मोस्टली लीड, लैग, फर्स्ट, लास्ट वैल्यू, राइट? एंड वैल्यू रहने दो आज के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बट यू got a good example of cross join, because cross join although see I told you right, I'll not go through at one go। cross join उस दिन अच्छे से नहीं समझाया था, because I was waiting for some other moment like where I can show you some live example to compare, तब तुम लोग को ज्यादा इजी समझ में आएगा। नाउ यू गाइस गॉट इट कि क्रॉस जॉइन कैसे काम करता है एंड हाउ वी आर यूजिंग क्रॉस जॉइन हियर। ठीक है, Yes. सो with cross join also could help to achieve the above requirement if cross join subquery, inner join, cross join subquery। तो क्रॉस जॉइन में क्या सबक्वेरी लिख रहे हैं हम लोग? ये सबक्वेरी है ना एक क्रॉस जॉइन के बाद। क्रॉस जॉइन सबक्वेरी इज स्केलर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया थोड़ा सा? Yes.